دوستوں تک میرا سلام پہنچے۔ میں ہوں واحد نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فورتھ ویو۔ تاریخ ہے 4 نومبر 2020۔ موضوع دھرتی کے خدا اور خدا ہونے کا دعویٰ۔ کس نے کیا، کیوں کیا، اور دنیا کو جس نظریے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا ویسی ہی ہے یا پشے پردہ اور بھی بہت کچھ چلتا ہے؟ آخر کیا ہے اس دنیا کا راز؟ ہم اس پر تھوڑا سا آج گفتگو کر لیتے ہیں، اور اپنی طرف سے میں کوشش کرتا ہوں کہ شورٹ میں آپ کو بریف کروں۔ جو میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا، وعدہ یہ بھی تھا کہ میں کانسپیرنسی تھیوری اور ان فیملیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو دنیا کو چلاتی ہیں۔ دوستو، میں آپ کو 17 فیملی ہیں ایسی جن میں سے صرف 3 کے نام بتا رہا ہوں، جن میں سے ایک روتھ چائلڈ فیملی ہے، روتھ چائلڈ فیملی ہے، دوسری راک فیلر فیملی ہے، اور تیسری مورگن فیملی ہے۔ یہاں ان 17 میں سے 3 فیملیوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو سمجھاتا چلوں کہ روتھ چائلڈ فیملی پچھلے 200 سال سے بینکنگ ویوستھا پر قابض ہے، اور تمام دنیا کے جو بینکنگ ویوستھا ہے اس کو ہینڈل کرتی ہے۔ دوسرے جو اسٹیک ہولڈر ہیں 17 فیملیوں میں سے، وہ بھی ان کے اسٹیک ہولڈر ہیں، پارٹنر ہیں۔ اس میں سے جو مورگن ہیں وہ انہوں نے بھی اپنا کاروبار شروع کیا، مگر یہ آئل فیلڈ میں، مائننگ میں ان کی مہارت ہے، اور ان کا پورا قبضہ جو ہے وہ آئل اور مائننگ پر ہے۔ اور ایک جو اس میں راک فیلر ہے وہ ہتھیار بنانے کی کمپنی چلانے کا کام کرتی ہے، اور سبھی ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، سبھی ایک دوسرے کے بینکرز میں پارٹنر ہیں، کمپنیوں میں اسٹیک ہولڈر ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں ہیں، تو مائننگ ہے اور آئل فیلڈ ہے اور آپ کا بینکنگ ویوستھا ہے اور ویپن انڈسٹری ہے۔ یہ تمام جو انڈسٹری ہے، حالانکہ ہر چھیتر میں روتھ چائلڈ کی جو فیملی ہے اس کی جو کمپنیاں ہیں لگ بھگ وہ ہر چھیتر کی کمپنیاں ہیں، دنیا بھر میں ان کی کمپنیاں ہیں۔ ان کی دولت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا، وہ اس کھیل سے پوری طرح باہر ہیں۔ دوستو، ایک بات اب ان فیملیوں کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے گا کہ ان فیملیوں کا ایک دستور رہا ہے کہ کسی بھی طرح یہ لوگ جو ان کے بڑے بزرگ کہتے آئے ہیں، اور جو ان میں سے پریوار کا بڑا سدسیہ ہوتا ہے، وہ مکھیا ہوتا ہے، وہ آگے ان کو کہتا ہے کہ ایک جوائنٹ فیملی میں ایکولی آپ پروفٹ بانٹتے جائیے، کسی بھی وواد کو لے کر عدالتوں میں مت جائیے۔ تو یہ لوگ عدالتوں میں لے کر اپنے معاملات کو نہیں جاتے ہیں اور آپس میں ہی تمام چیزوں کو نپٹاتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں ان کی کسی بھی بات کا جو ایک خلاصہ ہے وہ کبھی نہیں ہو پاتا ہے، اور کبھی ہم لوگ اندازہ ہی نہیں لگا پاتے ہیں کہ دراصل دنیا میں کیا چل رہا ہے اور کون اس کے پیچھے ہے اور کیا چلا رہا ہے۔ چھوٹی سی بات کو اگر میں تھوڑا سا ہنٹ کرتا چلوں تو یہ بھی ہے کہ ان فیملیوں کا ایک مکھیہ ٹارگٹ رہا ہے کہ یہ راج گھرانوں میں اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کرتے رہے ہیں۔ اس طرح سے ماضی میں راج گھرانے ان کے قبضے میں رہے ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے فائننس ان کو کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پائریٹس ہوتے تھے ان کو انہوں نے فائننس کیے ہیں، کمپنی کی ایجاد انہوں نے کی ہے، یعنی کہ جو پبلک لمیٹڈ کمپنی کی شروعات ہے یہ ان لوگوں نے کر کے، بینکرز سے فائننس کر کے پوری دنیا کو ایک طرح سے اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ یہاں دوستو ایک بات آپ سمجھ لیجئے گا کہ ان کے منافع کا یا ان کی پوری سمپتی کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے ہی، ان کی طاقت، ان کی پہنچ اور ان کی سوچ کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ دیکھیے، یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں بھی انہی فیملیوں کا ایک رول تھا، اور انہوں نے بھاری منافع کمایا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی بھاری منافع کمایا۔ ان کو بھی اگر ہم چھوڑ دیں تو واٹرلو میں روتھ چائلڈ کا جس طرح کا رول رہا ہے وہ میرے خیال سے منظر عام پر تو نہیں ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ اس وقت کی تمام کمپنیوں کو جب اس میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا گیا، جو ہار رہا تھا اس کو جیت بتائی گئی، جو جیت رہا تھا اس کو ہار کے آنکڑے پیش کیے گئے، اور اس طرح بہت سی کمپنیوں کے شیئروں کو بالکل لو ویلیو میں لے آئے، اور پھر روتھ چائلڈ نے ان سب کو خرید کر جو ہے وہ اس کے بعد جو نتائج تھے وہ الٹے آئے۔ تو اس طرح کے عام طور پر کھیل کھیلتے ہیں، کیونکہ تمام سوچنا جو چیزیں جو سوچنا میں یوز ہوتی ہیں، چاہے وہ اخبار ہو، ٹیلی ویژن ہو، ان سب چیزوں پر ان کا بھاری قبضہ ہے، اور یہ ان کی مرضی کے بغیر، آپ جو پترکار یا وشلیشک جو لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان سے کون لکھوا رہا ہے، وہ کیا لکھ رہے
रहे हैं। आपको ये बताता चलूं कि BBC जैसे इदारे पर भी इन्हीं की सरपरस्ती है, टेलीग्राफ जैसी व्यवस्थाओं पर भी इन्हीं की सरपरस्ती है। तो ओवर बाय IBN, CNN, इन सबको तो आप छोड़ दीजिएगा, कहाँ क्या चलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरा जो सूचना तंत्र है वो इनके कब्जे में चलता है, इन्हीं के हिसाब से आगे मूव करता है और दुनिया को सूचना देता है। सूचना तंत्र पूरी तरह इनके कब्जे में है। देखिए, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार मैंने इस मुद्दे को क्यों छेड़ा है। मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो ये है कि एक रशियन पत्रकार के द्वारा एक इंटरव्यू किया गया निक रॉकफेलर ने 2007 में एक इंटरव्यू में कहा था कि देखिए, जब उससे पूछा गया कि भाई आप ये बताइए कि आपके पास तमाम दौलत है, शोहरत है, फौज है, ताकत है, तमाम चीज़ें आपके पास है, अब और आपको क्या चाहिए। तो यहाँ रॉकफेलर ने बयान दिया था कि मैं चाहता हूँ कि इस तमाम ग्रह में जितने भी लोग हैं, मानव हैं, इन सब में मैं इनको सबको चिप दूँ और तमाम चिप पर कंट्रोल हो सारी चीज़ें, जिससे मैं तमाम मेरी सूचनाएं और तमाम चीज़ें मेरे कंट्रोल में हों। यानी वो बात मैं आपको यहाँ याद दिलाता चलता हूँ कि वो संगठन जो जिस तरह से आपस में बात करता है, तो वो कहते हैं कि जो दौलत है वो इस वक्त धरती का खुदा है और इस खुदा का पैगंबर रूथ चाइल्ड है। ये बात आप याद रखिएगा। तो इनमें भी आपस में जो है वो खुदा बनने की एक होड़ सी शायद लगी होगी। तो वो चिप के जरिए तमाम दुनिया को कंट्रोल करने की चाहत, यानी कि इसके पीछे सोच क्या होती है कि ये तमाम जो इनके पीछे, ये चाहे फेडरल बैंक हो या मैनहट्टन बैंक हो या बड़े बैंकर्स जितने भी हैं, वो सब इन्हीं के कंट्रोल में हैं। तमाम बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां इन्हीं के पैसों से चलती हैं। और तमाम, इसका मतलब ये है कि दुनिया में सरकारें अदलने बदलने और तमाम चीज़ों में इनका पार्टियों में इन्वॉल्वमेंट होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ये तय कर लेते हैं कि कौन आएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन कहाँ पर रहेगा, इनके हितों को कैसे फ़ायदा होगा, कैसे नुकसान होगा। ये तमाम खेल जो हैं वो बड़े आसानी से खेलते रहते हैं, चूँकि ये मान चुके हैं कि पैसा इस धरती का खुदा है। और यहाँ पर इन्होंने बेसिकली ये भी दावा करते हैं कि हम कुरान की उस बात को नहीं मानते कि खुदा है, बल्कि पैसा ही इस धरती का खुदा है और हम उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये एक सोच है, यानी कि कहीं ना कहीं दिमाग में कुरान भी इनके बसा हुआ है, जिसको ये पढ़ते हैं, ध्यान में रखते हैं और उसके हिसाब से प्लान बनाते हैं कि अब किस तरह से दुनिया को अपने कब्जे में रख सकते हैं। और क्योंकि जो कम से कम आधी दुनिया कुरान को फॉलो करती है, वो किस पैटर्न पर जाएगी, किस तरफ जाएगी, क्या उनकी सोच है, क्या उनके बयानात होंगे, ये सब कुछ वाज़ेह है, क्लियर है। तो शोध करने में बिल्कुल आसानी हो जाती है कि इनकी नब्ज़ को कैसे पकड़ा जा सकता है, कैसे दबाया जा सकता है, कैसे घुमाया जा सकता है। तो इस पर भी मैं आता हूँ, मगर इससे पहले आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि रॉकफेलर के ही आगे चेहरा जो है वो बिल गेट भी हैं, याद रखिएगा। जो अभी आपने कोरोना काल में चर्चाएं सुनी हैं चिप की जो अफवाहें फैली हैं, मैंने इसका एक तथ्य बताया है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैं जिस के इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, रॉकफेलर रूस, जो बेसिकली रूसो उसका नाम था, जिसने सर्दियों में इंटरव्यू किया था, माफ़ कीजिएगा, गर्मियों में इंटरव्यू किया था इस बात का, और जिसकी मैंने जिक्र किया है कि सब में चिप लगानी चाहिए। 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, और 2007 की ही गर्मियों में कैंसर से रूसो की मौत हो गई थी। वो कैसे मौत हो गई थी, नहीं हो गई थी, ये मैं नहीं जानता हूँ, मगर जो कुछ सामने है मैं उसके आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट हो सकती हैं या देखी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं कि दुनिया किस तरफ चल रही है। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे मैंने इन पर शोध किए हैं जिनमें मुझे ये पता चला है कि किस किस वार में इन्होंने कितना कितना पैसा कमाया है। यानी जब जंगें होती हैं तो उन जंगों में इनको भारी मुनाफा होता है, इनके हथियार बिकते हैं, इनके जो तेल के रेट ऊपर नीचे होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। दरअसल इन तमाम युद्धों में इन्हें भारी मुनाफा होता है और सब कुछ इनके हिसाब से होता है।
अलबत्ता एक बात आप समझ लीजिएगा कि जब 2008 का रिसेशन आया और रिसेशन में तमाम जो इनके बैंकर्स थे उनको भी भारी नुकसान हुआ, इस नुकसान को की भरपाई के लिए इन्होंने क्या प्लान बनाया और उस प्लान के हिसाब से क्या किस तरह का गेम खेला जाता है वो समझने की कोशिश कर लीजिएगा। यहाँ इन्होंने प्लान बनाया कि देखिए, मैंने कहा 17 लोग हैं और ये पूरा एक सिंडिकेट है, और सिंडिकेट जो है वो इनमें से तमाम चीज़ें, चाहे वो हथियार हो, कानून हो, माइनिंग हो, बैंकर्स हो, सब कुछ इनके हाथ में है, चाहे गोल्ड हो या डायमंड हो, सब इनके हाथ में है। दोस्तों यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने 2008 में फैसला किया था कि ताइवान को हथियार दिए जाएंगे। यानी यहाँ पर आप अमेरिका का थिंक टैंक या आप सोचें कि वहाँ का प्रेसिडेंट बहुत सारे फैसले करता है, ऐसी सोच आपको नकार देनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली रूथस्चाइल्ड, तो एम्स्चेल रूथस्चाइल्ड का जो नेटिव प्लेस था वो जर्मनी था। जर्मनी से उसने जो है 1750 में अपनी शुरुआत की थी, मगर मॉर्गन और रॉकफेलर का जो नेटिव कंट्री है वो अमेरिका ही है। तो इसमें से बहुत सारे जो है नाम हैं जिन्हें आप छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा नाम लेने ठीक नहीं है। तो वो सारे कुछ यूरोपियन हैं, कुछ अमेरिकन्स हैं। और यहाँ एक चीज़ आपको मैं और याद दिलाता चलूँ कि जिससे आपको वाजे हो जाए कि ये पूरा खेल कैसे चल रहा है। मैं ताइवान की बात पर लौट कर आऊँगा। यहाँ ये बताना आपको ज़रूरी है कि जब इजराइल बनाया गया था, क्योंकि यहाँ रोथस्चाइल्ड के बारे में मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि उन्होंने रब्बी की पढ़ाई की थी, एक तरह से अपने आप को यहूदियत के एक बहुत ही बड़े पैरोकार के तौर पर एम्स्चेल रोथस्चाइल्ड देखते थे, और उन्होंने तमाम कोशिशें की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इसीलिए ये तय हुआ था कि जो बाद में एक नाम और आता है जेनोसाइड का, जिसमें मैं ना इस वक्त नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सोशल मीडिया पर वो बैन है, और बैन है तो इस वजह से इस एपिसोड को भी रोका जा सकता है, तो मैं उस तरीके से उस नाम को नहीं लूँगा। मगर थोड़ा सा आपको समझाता चलूँ कि उस कत्ले आम के बाद तमाम दुनिया से यहूदी दौड़े चले आए और वो सब यरूशलेम में इकट्ठा हुए। यरूशलेम में यहूदियों की एक जो पेशन गोइयाँ हैं, जब वो उनको देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यरूशलेम में वो आएंगे, एक पेड़ है उसको उगाएंगे, जब वो पेड़ पर फल लगने लगेंगे तो फिर उनका मसीहा जो है वो आने वाला होगा, वो आएगा। उसके लिए उन्हें थर्ड टेम्पल बनाना होगा, और थर्ड टेम्पल के अलावा उनको तो यहाँ पर एक गाय होगी जिसकी वो कुर्बानी देंगे, ज़िबा करेंगे, वो बहुत सारी। उसके बाद ताबूत सकीना उनके हाथ में लग जाएगा, और उसके बाद फिर वो तमाम दुनिया पर राज करेंगे। मगर तमाम दुनिया पर राज अलग अलग तरीके से करने के इनके प्लान जारी रहते हैं, और ये उस तरह से, ये तो एम्स्चेल रूथस्चाइल्ड की बात है। मैं रॉकफेलर की बात बता चुका हूँ, जो वो चिप के जरिए तमाम दुनिया पर राज करना चाहते थे, और यहाँ मॉर्गन का भी अपना एक खेल चलता रहता है। तो मतलब हम ज़्यादा आप समझदार हैं, मुझे ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाना चाहिए, मगर ऊपर से जो ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो कि दुनिया में किस तरह, ये मैं कभी नहीं मानता हूं कि ये जो धार्मिक खेल खेले जाते हैं या फिर जो प्रेसिडेंट्स के द्वारा या देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, ये सिर्फ दो लोगों की सेंटिमेंट के आधार पर हो जाती है, ऐसा नहीं है। इनके पास तमाम शोधकर्ता हैं, तमाम टीमें हैं, तमाम जहाँ जो चाहते हैं वहाँ ये लोग करने में सक्षम हैं, कर देते हैं, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते और ना ही कुछ कर पाएंगे। ये भी एक सच है, क्योंकि पैसा एक बहुत बुरी बला है और उसके सामने हर कोई झुक जाता है। वो कैसे झुकता है इस पर भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मगर वापस ताइवान पर आ जाते हैं। ताइवान, हम जब इन्होंने हथियार देने का फैसला किया था, ताइवान को देने की शुरुआत की, तो उसके पीछे सिर्फ ताइवान से ये इतना पैसा कमा लेंगे ये नहीं था। मसला ये था कि जब ये ताइवान को हथियार देंगे तो ताइवान मजबूत होगा, और ताइवान मजबूत होगा तो चीन अपने आप को इम्प्रूव करेगा, अपने आप की ताकत को बढ़ाएगा, और जब वो अपनी ताकत को इंक्रीज करेगा चीन, तो उसके अड़ोस पड़ोस में जितने भी ओशियान के कंट्री हैं वो इससे खतरा महसूस करेंगे। दुनिया के तमाम देश जो हैं वो उसे खतरे में महसूस करने लगेंगे, और इस तरह से इनकी हथियारों की तमाम कंपनियां वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हथियार बेच
पाएंगी, या इनकी विदेशों में जो हथियार बनाने की कंपनी है उनके स्टेक होल्डर ये लोग हैं, जो तकनीक अपनी प्रोवाइड कराते हैं, उनको उनके हथियार बिकेंगे तो भी इन्हीं को फायदा होगा। तो हथियारों की दुनिया से इनको बहुत बड़ा मुनाफा जो 2008 में ये गवा चुके थे उसको वापस रिकवर करने के लिए इन्होंने इस गेम की शुरुआत की और ताइवान को मजबूत किया, जिसका रिजल्ट यही हुआ कि चाइना ने भारी तौर पर हथियारों पर अपना फोकस किया, आधुनिक हथियार बना लिए और इन आधुनिक हथियारों को का डेमोस्ट्रेशन करने पर एक सिचुएशन बनाई गई जिसके लिए मजबूरी तौर पर जो है चाइना को उनका डेमोस्ट्रेशन करना पड़ा। यहाँ तमाम इलाके में आप देखेंगे कि हथियारों की भारी खरीद फरोख्त चल रही है। तमाम देश जो अपने खेमे बदल चुके हैं, भारत भी अब रशिया को छोड़कर अमेरिका से ही हथियार खरीद रहा है या इजराइल से ही खरीद रहा है। इजराइल की पाइपलाइन भी रूथस्चाइल्ड फंडेड है, अब ऑयल पाइपलाइन भी रूथस्चाइल्ड फंडेड है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको भी रूथस्चाइल्ड का मोटा फंडिंग आता है और वहाँ तमाम जो वेपन्स का अब जो 38% उसको एड मिलती है, पैसा मिलता है देश चलाने के लिए अमेरिका से, उसको भी उसके पीछे भी यही संगठन काम करते हैं, ये समझ लीजिएगा। तो मेरा मतलब यहाँ कहने का ये है कि ये कंपनियां कहीं भी काम कर रही होती हैं, कुछ भी कर रही होती हैं। ये फ्यूल कंपनियां, तेल कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट मैंने जिक्र किया, इनमें से एक का तो अरबों के साथ में जिस तरह का साठगांठ चल रही थी, जिस तरीके से तेल को लेकर तमाम दुनिया में, और ये देखिएगा ये तेल मॉर्गन ने कब ये बहुत पहले इस बात को आकलन कर लिया था कि आने वाली दुनिया में एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट रोल होगा, और ये तब जब दूसरे मामलात में अंगेज था या कपास या दूसरी और बहुत सारी चीज़ों में ये अंगेज हुआ करता था, इसने अपना पूरा फोकस तेल की तरफ कर दिया था और तेल पर एक तरह से कब्जा कर लिया था और इसने उस चीज़ों को सफलतापूर्वक जो अपने कंट्रोल में लाया। अब ये तेल का खेल चूंकि खत्म होने वाला है, तेल का खेल ये समझ लीजिएगा कि 2039 से पहले तेल दुनिया में बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, इसकी ज़रूरत किसी को नहीं रहेगी। इस तकनीक से बिल्कुल लोग बाहर निकल चुके होंगे। मगर चूंकि जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, जिन लोगों को ऐशो आराम की ज़िंदगी में जीना आ चुका है, उन लोगों का क्या होगा? इसमें यही वजह है जो आप आज देख रहे हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो अरब ममालिक हों, चाहे वो सूडान या बहरीन और ये तमाम देश हों, ये तमाम देश अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जो तेल के बदौलत ये लोग चला रहे थे, तेल के खजान की वजह से इनके पास अथाह पैसा था जब ये कमाई कर रहे थे, अब चूंकि धीरे कम करके वो इतना कम होता चला जाएगा कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर, उसकी कंपनियों पर जितना खर्च आता है वो भी ये रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में इनको कोई ना कोई अल्टरनेट पैसा कमाने के लिए चाहिए, चूंकि इन्हें ऐसो जो इनके अपनी ज़िंदगी का लेवल है उस लेवल को मेंटेन करने के लिए, और दूसरी तरह की अर्थव्यवस्था इनके पास नहीं है, चूंकि इन्होंने उद्योग नहीं लगाए हैं, प्रोडक्शन इनकी नहीं होती है, और कुदरती तौर पर जो अगर हम कहें कि कृषि पर आधारित यानी कि जो ज़र पैदावार है उस पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था हो, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ दोस्तों यहाँ इन देशों के पास खनन ज़रूर है, इस खनन में भी बहुत सारा इनसे ज़्यादा खनन और माइनिंग के जो मटेरियल्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, वो अफ्रीकन देशों में मौजूद हैं जहां पहले से ही इन लोगों का कब्जा है। तो यहाँ अरब अपनी जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है उसे बचाए रखने के लिए उनकी मजबूरी है कि वो इजराइल के साथ, ये इजराइल भी कुछ नहीं है, मैंने कहा कि वो 17 जो एक संगठन है जो डार्क वर्ल्ड है, उस डार्क वर्ल्ड का एक हिस्सा जो उनको घेर कर यहाँ लाया गया, बसाया गया, और फिर वो उनको यहाँ पर बने रहने के लिए जो उनको तकनीक दी गई, उनके लिए इन्वेस्टमेंट किया गया, उनको अभी भी एड दी जाती है, ये सब कुछ उन्हीं की चाहतों के हिसाब से चल रहा है। तो ये जो अब इजराइल का सहारा लेकर अरब ममालिकों को मजबूर किया गया है, अरब ममालिक अब जिस तरीके से पूरी तरह से इजराइल के सामने घुटने टेकते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ ये समझ लीजिएगा कि ये बात उनकी
वाज़ेह हो जाती है जब उन्होंने कहा आपस में कि अब दुनिया का खुदा जो है वो पैसा है और पैसे का पैगंबर रोथशाइल्ड परिवार है। तो ये सब बात आपको ये दिखाई रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि आज जो खुदा को मानने का नाटक करते रहे हैं, मुसलमान होने का नाटक करते रहे हैं, वो सभी लोग अब इस्लाम की डेफिनेशन बदलने में लगे हैं। और ये तमाम दुनिया में, एक चीज़ मैं कहता हूँ, लोगों में मेरी मुखालफत है, बहुत मुखालफत है, अभी भी मुखालफत की जाएगी, मगर मैं विश्लेषक हूँ, विश्लेषण करना मेरा काम है। वो आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत बुरा लगे, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं दूसरों की पोल खोल कर आप तक पहुँचाता हूँ तो आपकी हकीकत भी आपको बताता हूँ। यही वजह है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी खामियों को मैं गिनवाने का काम करता हूँ। और मैं खुद पारसा हूँ, ये मैंने कभी नहीं कहा है, मगर मेरा मन लगता है मैं आपको इस तरह की बातें बताऊं जिससे आप मेरे मुखालिफ हो जाएं, मगर फिर भी कभी कभी वो एक टीस की तरह काम करे और आपको याद आए कि मैं क्या कह रहा हूं, वो उसमें कुछ हकीकत भी है कि नहीं, ये आकलन आप खुद ही कर लिया करें। तो बेसिकली तमाम इस्लामिक जगत में ये हुआ है कि इनको तमाम प्रोडक्शन से दूर रखा गया, तकनीक से दूर रखा गया, और एक प्लान के तहत इनको ऐशो आराम करके इन्हीं के ज़रिए तमाम दुनिया से पैसे को कमाया गया। और पैसे को कमाने के बाद वो इस हालत में पहुंचे कि भाई अब ये इनकी ज़रूरत ख़त्म होने जा रही है, चूँकि तेल जो है वो अब अगली दुनिया में ज़रूरत की चीज़ नहीं रह गया है, और आगे फ्यूल के तरीके अलग बदल जाएंगे, ज़रूरत अलग बदल जाएंगी। तो अब ये लोग भी इस बात को समझ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बचाए रखने के लिए, अपने ऐश, अपने वजूद को बचाए रखने के लिए, शाही ख़ानदानों को बचाए रखने के लिए ज़रूरी हो गया है कि इजराइल का सहारा लिया जाए, फिर अमेरिका का सहारा लिया जाए, ब्रिटेन का सहारा लिया जाए, फ्रांस का सहारा लिया जाए, जो ऐसे मुल्कों के ख़िलाफ़ हैं जो देखिए फ्रांस एक नए कानून भी ला रहा है पूरी तरह से, जिसमें एक तरह से इस्लाम की जो कवानीन हैं उनके मुखालिफ वो पाबंदी आयद करेंगे, और पाबंदी आयद करने के बाद वो ज़रूर जो है वो इस तरह की बात करेंगे कि आप इस्लाम पर बने रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, उस पर भारी जुर्माने किए जाएंगे। ये फिर देखते देखते पूरे यूरोप में हो जाएगा। तमाम ऐसे देश जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, उन देशों में इस तरह के कानून आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि क्या अफसोस भी क्या करना चाहिए, अफसोस नहीं करना चाहिए इस बात का, कि वजह ये है कि जो लोग इन देशों की तरफ गए हैं, माइल हुए हैं, वो इसी तरह जिस तरह अरब के देश पैसा कमाने के लिए आज इजराइल के साथ हाथ मिला चुके हैं, बैतुल मुक़द्दस को बेच चुके हैं, और मस्जिद अक्सा की भी आप क्या होगा, क्योंकि थर्ड टेंपल बनने वाला है, वो बनाया जाएगा। यानी कि आपको एक अलग तरह से इस्लाम और मुसलमान आपको नज़र आने लगेंगे। धीरे धीरे सभी मुसलमान अपना रुख बदलते हुए नज़र आएंगे। अगर ये ऐसा नहीं करते तो ऐसे, चाहे ये गरीब थे या अमीर थे, ऐसे मुस्लिम कंट्रियों को छोड़कर ये रोज़ी रोटी कमाने ऐसे देशों में नहीं जाते जहाँ पर पहले से ही मुसलमानों को शर्मिंदा किया जाता रहा था। तो ये भी एक बात है कि आप सिर्फ एक तरफा ही किसी को कसूरवार ठहराएं, ये भी ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मुस्लिम जगत में जितना नुकसान पहुंचाने के लिए इनको आलिमों, सभी में आलिमों को माफ़ कीजिएगा, जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह की राह पे चलते हैं, जो ईमान पर, कुरान पर चलते हैं, मैं उनको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मगर ज़्यादातर लोगों का इस्तेमाल किया गया है एक प्रोपोगंडा के लिए, जिसमें इनको तकनीक और ताकत से दूर रखा गया, इनको ऐशो आराम के लिए इससे दूर नहीं किया गया। अलबत्ता अगर ऐसा किया जाता तो फिर तमाम अरब ममालिक में आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ियां, उनके घरों में सोने की चीज़ें और सब कुछ आपको मिलेगा, जहां जिनका नाम लेकर हम बात करते रहे थे, जिन्हें हम अपना सरताज मानते रहे थे, वो सब चीज़ें। मगर पूरी दुनिया जहां गरीब देशों में मुसलमान पाए जाते हैं, उनको बरगलाया गया, उनको एक इस तरह का मुसलमान बनाने की कोशिश की गई कि वो तरक्की के किसी भी मामलात में शामिल ना हो, और वो सिर्फ उंगली उठावा, भीड़ दिखावा बना रहे, एक बाजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहे, एक दास, एक गुलाम की तरह उसका इस्तेमाल किया जाए। इसमें वो सब लोग कामयाब रहे जिन्होंने दीन का झंडा उठाने का नाटक करके इन लोगों को इस हालत में पहुंचाया कि आज अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते, अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, और अगर ये समझ भी ले तो भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ नाजरीन आपको यही बताना चाहता था कि दुनिया के तमाम
तमाम बादशाह, चाहे वो तुम्हारे हों या दूसरों के हों, इन तमाम बादशाहों के पीछे जिस तरह से, मैं पूरे खुलासे नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैंने कहा कि 100 एपिसोड की ज़रूरत पड़ेगी अगर एक एक बात पर आऊँ, ये बताऊँ कि कहाँ किस देश में इन्होंने पहले क्या गेम किया, फिर उसको कैसे मोमेंट में लाए, फिर उसके बाद आपने उसको कैसे फॉलो किया और फिर किस तरीके से ये पहुँच गए। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में या मेरी शोध में सच्चाई है तो इन हिंट को सच्चाई मान लेना और कोशिश करना खुद ब खुद शोध करने की और तरक्की याफ्ता बनने की, दुनिया में सुधार पैदा करने की। सुधार पैदा का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक धोखा दिया जाता है कि सुधार उसको कहते हैं कि आपने जो है अगर इल्म हासिल कर लिया, और इल्म में क्या कर लिया, अगर सिर्फ आपने कुरान शरीफ पढ़ लिया, उसका तर्जुमा भी नहीं पढ़ा, तो आपने ज़मीन पे सुधार पैदा कर दिया। ये धोखा देने की बात है। आप कुरान पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, आप उसको आपको अपनी ज़बान में आपको मतलब पता होना चाहिए। मेरा मानना ये है, आपका क्या मानना है वो उसे आप अपने तरीके से मानिए। यहाँ जब तक इल्म की बात आएगी तो तमाम दुनिया के जो जितने भी ज़राए हैं उनमें आपको इल्म हासिल होना चाहिए। यानी कि मैंने आपको बताया इस पूरे प्रोग्राम में कि वो कुरान का हवाला भी उन्होंने दिया और कुरान को पढ़कर वो जानते हैं कि तमाम मुसलमान किस दिशा में जाएंगे। और तुम क्योंकि मुसलमान जो है वो बाइबल, तौरात, जबूर किसी भी चीज़ को पढ़कर वो अंदाज़ा नहीं लगाना चाहते कि क्रिश्चियनिटी किस रूट पर जाएगी, यहूदियत किस रूट पर जाएगी, उसके सामने आने वाले दिन कैसे होंगे। इन सब चीज़ों से अगर आप गुमराह रहे हैं और आपने इन पर शोध नहीं किया है तो इसका मतलब साफ है कि आप कुछ जानते ही नहीं हैं कि आपके सामने क्या होने वाला है। तो मैं इस मुस्लिम उम्मा को पूरी तरह एक डार्क, एक अंधेरे की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। थोड़ी बहुत दिए कहीं कहीं जलते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह तमाम दुनिया को जो है अपने दीन, अपने नूर से रोशन करे और लोगों के दिलों से नफ़रत निकाले, मुसलमानों के दिलों से भी नफ़रत निकाले दूसरों के प्रति, और दूसरों के दिलों से भी नफ़रत निकाले मुसलमानों के प्रति, और एक खूबसूरत दुनिया का संचालन करे परवरदिगार। बस फिलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा। अलबत्ता बहुत सारा दुख, बहुत सारा दर्द जो है छुपाए हुए इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। फिलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।